Hi students, this is second video lecture for the chapter number 9 reproduction in animals. So in this video in detail we are going to study about the male reproductive system. Okay, so first of all as we have learned, there is two types of fertilization: internal fertilization, external fertilization. In human beings, internal fertilization is taking place, and male reproductive system as well as female reproductive system plays vital role. Clear? So we will begin with male reproductive system. What are the organs which are important in this male reproductive system and how it works? So first of all we will discuss about this reproductive system means the male gonad. Okay, male gonad means reproductive organ, male gonad, male reproductive system. So first one is the testes. We will start from the testes. So this testes are its function is sperm formation. As I told in first video, sperm is the smallest cell in human body, and the ovum is the largest cell in human body. So sperm क्या है? Sperm is produced by male reproductive system, and when this sperm is reached to the ovum in female body, there is fertilization, zygote formation, and all that stuff. So first of all, who produce this sperm? Who produce this? Who produce this male gamete? Male gamete means sperm. Okay, clear students? So it's ये testes जो होती है, testes has the function to produce sperm. Okay, so these are the testes. I have shown on your screen. You can see I have used the brush and I have shown these are the testes. So it is facilitated by male sex hormone, that is testosterone. ये जो टेस्टिस होती है, इसमें क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है. ये जो टेस्टिस है इसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है, एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय द मेल हार्मोन. मेल हार्मोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरॉन. सो ये टेस्टोस्टेरॉन इसमें वर्क करता है. ड्यू टू दिस हार्मोन, ड्यू टू दिस केमिकल, दिस स्पर्म आर एक्ट एज अ मेल रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस which is वो क्या करता है? It is fertilize the egg, and I have shown you where these testes are present. Now we will move towards the next slide, that is the next male reproductive system का जो next organ है, that is scrotum. ये scrotum क्या है? Scrotum is it is sac-like structure that provide 2 to 3 less degree Celsius temperature than body temperature. So our body has the temperature, हमारे बॉडी का आइडियल टेम्परेचर जो होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस, वो +- 2 डिग्री सेल्सियस इट इज़ एक्सेप्टेबल. सो ये जो टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस हैज़ द रोल टू प्रोड्यूस. टेस्टिस क्या करती है? स्पर्म प्रोड्यूस करती है, एंड ये जो ये वाले टेस्टिस है, then I have shown you in your screen, you can see scrotum बिल्कुल अच्छे से क्लियरली that you can see this is the scrotum. ये जो क्या है? ये scrotum है. तो ये जो scrotum है इसका रोल है टू मिनिमाइज द टेम्परेचर. ओके, वो जो होता है, वो जो पार्ट है जो स्कॉटम है, वो क्या करता है? टेम्परेचर मिनिमम करता, कम करता है टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कंपैरेटिवली अवर बॉडी. क्यों करता है कम टेम्परेचर? बिकॉज स्पर्म रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर. इफ स्पर्म if you want to survive the sperm, it should be less than body temperature 2 to 3 degree Celsius. So ये जो scrotum है, it provide 2 or 3 degree less temperature than body temperature required for sperm formation. Actually sperm formation होना, उसका survive होना, तो इसके लिए ये scrotum plays important role. Now epididymis. Okay, ये epididymis है. So ये क्या है? epididymis, it is it to store sperm temporarily. अब testis ने क्या किया? testis has generated
स्पर्म्स, टेस्टिस ने जनरेट कर दिया, स्पर्म्स बना दिया. स्कॉटम हैज़ द रोल, उसने टेम्परेचर, स्कॉटम कैसे है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एंड उसने क्या किया, इट हैज़ द कैपेसिटी टू लेस टेम्परेचर है, उसकी वजह से स्पर्म जनरेट हो गए हैं एज वेल एज वो सर्वाइव भी हो रहे हैं. तो एपिडिडाइमिस इज टू, ये जो है एपिडिडाइमिस, ये क्या करता है, इट इज स्टोर स्पर्म्स टेम्परेरीली, थोड़े टाइम के लिए स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है, दैट इज एपिडिडाइमिस. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ ब्रश, आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज, ये जो है ये टेस्टिस के ऊपर का जो है, ऊपर वाला, हाँ टेस्टिस की ऊपर वाला, दैट इज एपिडिडाइमिस. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द वास डेफरंस. सो ये क्या है, अ डक्ट दैट कैरी स्पर्म्स. ये जो स्पर्म है एपिडिडाइमिस में टेम्पररी स्टोर हो गया, टेस्टिस में बन गया, इसको कैरी किया जाता है. इसको स्पर्म का रोल क्या है, एक्चुअली मेल बॉडी है, इसमें स्पर्म बन गया, बट स्पर्म का रोल क्या है एक्चुअली, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, वी आर टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट इन दैट एस्पेक्ट. हम वो एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. in which aspect we are discussing in that reproduction aspect. So sperm move करते हैं and that movement is taking place. a duct, वो कौन सी है, ये जो sperm duct, vas deferens है, sperm duct है, उससे क्या हो जाएगा, it move, ये इसका sperm move हो जाएंगे and इसकी वजह से ड्यू टू दिस ये sperm movement करेंगे and it will reach to their destination. सो वी हैव डिस्कस, हमने क्या देखा, टेस्टिस देखा, देन स्क्रोटम देखा, एपिडेमिस देखा, एंड ये देखा हमने, इवन हमने क्या देखा, डक्ट देखा. सो दिस आर द डिफरेंट ऑर्गन्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द सेकेंड ऑर्गन इज सेमिनल वेसिकल. ओके, सेमिनल वेसिकल क्या है, इट इज द ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड दैट सिक्रीट फ्लूइड. अब ये स्पर्म का हो गया, स्पर्म तो टेस्टिस ने बना दिया है ना, डक्ट ने उसको ले लिया. फिर ये जो सेमिनल, ये डक्ट में से जब ये मूव करता है, डक्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये जो टेस्टिस है, एवरी टाइम आई हैव टू जस्ट, मुझे वो लेना पड़ता है, हाँ ये टेस्टिस है, फिर ये डक्ट है, यहाँ पे रह गए, इन्होंने टेम्परेचर कम कर दिया. ये जो डक्ट है मेरे हैंड से इतना, हाँ तो डक्ट से व्हेन इट स्टार्ट्स, इसका मूवमेंट अगर होना है तो सबसे पहले क्या होगा, इसका मूवमेंट होने के लिए ये जो सेमिनल वेसिकल है, अ ग्लैंड, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड दैट सिक्रीट फ्लूइड, वो फ्लूइड सिक्रीट करती है. फ्लूइड मीन्स क्या होता है, ये फ्लूइड मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, जिसमें पानी जैसा रहेगा, है ना, वो फ्लूइड है. तो फ्लूइड कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड, उसे क्या बोला जाता है, सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड विच सिक्रेट फ्लूइड एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं. एंड इट्स फंक्शन, ये क्या है, इसका फंक्शन ऐसा होता है, उस स्पर्म के अंदर ये सेमिनल फ्लूइड चला जाएगा. अंडरस्टूड, स्पर्म्स है, उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड चला गया. नाउ द स्पर्म कैन मूव, अब ये स्पर्म मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या हो गया, इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा. अपने आप स्पर्म मूवमेंट नहीं करने वाले हैं, बट ये सेमिनल सेमिनल फ्लूइड की वजह से इट हैज़, उसकी वो क्या कर सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं. सो दिस सेमिनल वेसिकल हैज़ द, इसने क्या किया, सेमिनल फ्लूइड दे दिया, जिसकी वजह से टू प्रोवाइड मीडियम टू स्पर्म, इसमें क्या हो गया, अब स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए मीडियम मिल गया. अंडरस्टूड, ये वाटरी मीडियम है एंड इट गॉट टू द स्पर्म्स. एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस सेमिनल फ्लूइड इज टू गिव न्यूट्रिशन टू स्पर्म. इफ स्पर्म, हमें स्पर्म को सर्वाइव करना है, इफ वी वांट टू सर्वाइव द स्पर्म, it should have the nutrition and that nutrition is given by this seminal fluid. So the sperm plus fluid, which fluid, seminal fluid, sperm and seminal fluid, when both are together, that is called as semen. उसे हम क्या बोलते हैं, semen बोलते हैं. Sperm and fluid is now called as semen. Clear? Okay. Now we will move toward the कॉमन डक्ट. ये कॉमन डक्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि ये जो
टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किए, उसके बाद एक डक्ट से वो क्या हो गए, डक्ट में चले गए, उसके बाद वो डक्ट में सेमिनल फ्लूइड आ गया, अब वो उनको मीडियम मिल गया मूवमेंट करने के लिए। अब मीडियम मिल गया तो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इनका मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद ये जो है अ डक्ट फॉर्म्ड बाय यूरेथ्रा एंड वास डिफरेंस, ये जो वास डिफरेंस है इसका एंड यूरेथ्रा एंड इनका एक कॉमन डक्ट है फॉर द सिक्रीशन ऑफ यूरिन एज वेल एज सीमेन। सो ये जो सीमेन क्या है, सीमेन मीन्स स्पर्म प्लस सीमेन लिक्विड, एंड यूरिन जहाँ से पास होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से, ऑन दैट प्लेस from that place also this sperm, this semen is passed. Understood? If we want to pass it, अगर उनको जाना है बाहर, बॉडी से बाहर जाना है तो वो वहीं से जाएंगे जहाँ से यूरिन जा रहा है। अंडरस्टूड? अब हमने क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। अब ये हम अभी वी रीच टू द कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट यहाँ है कि स्पर्म सेमिनल फ्लूइड, इट फॉर्म्स सीमेन। अब ये सीमेन कहाँ है, ये कहाँ आ गया, उसका मूवमेंट होते होते ये कॉमन डक्ट है, यू कैन सी स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस उसे बोलते हैं। तो फिर इसका एंड यूरेथ्रा का एक कॉमन डक्ट होता है, एंड कॉमन डक्ट इसलिए है कि वो सेम प्लेस में से यूरिन भी पास हो सकता है एंड सीमेन भी पास हो सकता है, बट बोथ आर नॉट पास्ड एट अ टाइम, है ना, दोनों एक ही टाइम नहीं पास हो सकते हैं, इधर सीमन और यूरिन, एक तो सीमन पास हो सकता है या फिर यूरिन पास हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू विल correlate it with this diagram, whatever I am telling you, whatever the information is displayed on this on your screen, you can understood it. Now this was the human male reproductive organs के बारे में हमने देखा। So in brief अगर हमें उसके बारे में सोचना है या फिर डिस्कस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बात कर सकते हैं कि टेस्टिस था, एपिडिडाइमस था, वास डिफरेंस था, सो कॉमन डक्ट था, ये सब चीज़ें थी, स्क्रोटम था। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब व्हाट इज मेल गोनाड क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो टेस्टिस है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, दे आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म, एंड एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, सो मेल की साइड से स्पर्म हैज़ द वाइटल रोल। ये जो रिप्रोडक्शन में स्पर्म का वाइटल रोल है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो द स्पर्म हैज़ द स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts. First is the head, second is the middle piece, and last one is the tail. Correct? So when we are talking about this is sperm. Sperm is a male gamete. Sperm क्या है? Male gamete है. It is divided into 3 parts: head, middle piece, and tail. Now first of all we will discuss about the head. हम सबसे पहले बात करेंगे हेड के बारे में, बात करेंगे कि हेड का what is the role, okay, what is the role of this head of sperm in reproduction. So head has nucleus. हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेड हैज न्यूक्लियस, ये वाला हेड है एंड इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड अ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। हेड में न्यूक्लियस है एज वेल एज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है एट टिप, बिल्कुल टिप पे, है ना। टिप मीन्स कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल, है ना। So it has a nucleus and hydrolyzing enzyme at tip which is capable of lysis ovum. ये जो hydrolyzing enzyme है उसका capability क्या है, hydrolyzing enzyme has the task to क्या करना है उनको, fertilization of ovum. हेड ही क्या करता है, ओहम की जो वॉल होती है उसको ब्रेक करते इट एंटर
ओहम में चला जाएगा। कौन? head of the sperm. Of course, the middle piece and the tail is along with it, but the main task is done by this head. Understood? Hydrolyzing enzyme. It has that capability. Now we will discuss about the middle piece. What is the role of this middle piece? Actually, it has a mitochondria. Mitochondria means क्या? Power house of the cell. Mitochondria को क्या बोलते हैं? Power house of the cell. So it has mitochondria. Mitochondria means it gives energy. Mitochondria का रोल ही होता है to give energy, that provide energy to sperm. जो survival है उसका sperm का, जो लाइफ स्पैन है, it is given by this mitochondria, and this mitochondria is present in the middle piece of the sperm. टेल जो है यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इतना तो आपको पता है, आई हैव शोन यू कि जैसे हेड है, देन मिडल पीस है, टेल है. ये जो टेल है इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म. ये क्या करता है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म का मूवमेंट करने के लिए स्पर्म को हेल्प करता है. ये टेल है एंड इसकी मूवमेंट ऐसी होती है, ऐसी वाली मूवमेंट ये स्पर्म का ड्यू टू इट इज पॉसिबल ड्यू टू टेल. फ्रैगाइल मूवमेंट बोला जाता है इसको. Now we will move towards the next topic, that is female reproductive system. Okay, in a female reproductive system, first of all we will discuss about the ovaries. हम किसकी बात करेंगे? ovaries की बात करेंगे. ये फीमेल गोनाड है. फीमेल गोनाड इज द ओवरी एंड मेल गोनाड इज द स्पर्म. मेल आपको क्या याद रखना है? हाउ टू रिमेंबर? तो मेल गोनाड इज स्पर्म, female gonad is ovaries. Okay, so these ovaries, these are the, this is ये जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का ये जो है, this is ovary, this is also ovary. Understood? Its function is egg formation. ये जो ovary है इसका what is the function of ovary? to produce egg formation. egg को ही हम ovum बोलते हैं, ठीक है. So egg formation is taking place by the ovaries. ये then fallopian tube. fallopian tube जो है, that fallopian tube is also called as oviduct. उसे हम oviduct भी बोलते हैं. ये जो है this is, ये जो है fallopian tube है, this is fallopian tube. To receive matured egg and fertilization also takes place here. ये जो fallopian tube में fertilization of egg और ovum takes place. Clear students? Because ये जो green color का जो ovary है, the green color is the, ये ovary है ना, ये ovary when it is matured, ये matured होगा तो ये fallopian tube में चला जाएगा, है ये fallopian tube में when it is it went to the fallopian tube, फिर क्या हो जाएगा? sperm, if sperm will enter in female body, जैसे I will show you, ये ऐसे हो जाता है. सो स्पर्म जब एंटर होगा फीमेल बॉडी में तो द फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस फैलोपियन ट्यूब ओनली. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये ग्रीन कलर का ओवरीज है, ये ओवरीज मैच्योर हो जाएगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, उसका एक जर्नी होता है. एंड इफ इन दैट टाइम पीरियड स्पर्म एंटर इन फीमेल बॉडी एंड वो आएगा, अगर स्पर्म वजाइना से आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एंड वो मैच्योर्ड एग तक इफ इट विल रीच, then there is possibility of fertilization. So fertilization also takes place in fallopian tube. हमने क्या देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द ओवरीज. इट हैज़ द फंक्शन टू प्रोड्यूस एग और ओवम. देन fallopian tube has the task. Fertilization is taking place there because the matured eggs are released in fallopian tube and if sperm enters there is possibility of fertilization. अगर sperm आया तो fertilization हो सकता है. It is possible. It is not mandatory कि always it is possible. It's up to the favorable condition. Now we will move towards the uterus. अब हम किसकी बात करेंगे? यूट्रस की बात करेंगे. ओरी हो गया, fallopian tube हो गया, now uterus. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमारा ये डायग्राम है, अ सैक वेयर बेबी डेवलप्स. सो यूट्रस क्या है? अ सैक वेयर बेबी डेवलप. तो ये जो यूट्रस है
ये वाला जो पार्ट है ऐसा, ये वाला हम इसे क्या बोलेंगे, यूट्रस बोलेंगे। ओके, जहाँ पे ये जो यूट्रस में यहाँ फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद का अप टू 8 वीक्स उसे हम फीटस बोलेंगे। एंड देन इट इज फीटस के बाद वो इसमें एम्ब्रियो ओम के फॉर्म में आ जाएगा। सो a sac where baby develop, that is called as uterus. I have shown you in figure. Now cervix, a cap of vagina, that is also shown over here. ये जो है ये वाला, हाँ, that is a cap of vagina, जिसे हम क्या बोलते हैं, cervix बोलते हैं। Then vagina, so part that receives sperm, ये जो वजाइना जो है, यू कैन सी, अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा सकती हूँ, यस आई कैन शो यू, है ना, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। नाउ आई हैव जस्ट मैक्सिमाइज इट, सर्विक्स भी आपको दिखाई दे रहा है एंड वजाइना भी दिखाई दे रहा है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ वजाइना, टू कैरी स्पर्म्स, है ना, एंटर करना है। अगर फीमेल की बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो वजाइना से हो रहा है। दिस इज द रोल ऑफ वजाइना। Now, we have discussed about the male reproductive system as well as female reproductive system. Male reproductive system में हमने testis देखा, to produce to generate the sperm. Then उसके बाद हमने क्या देखा, स्कॉटम देखा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होता है। एपिडिडाइमिस है जो क्या करता है, वो मूवमेंट करने के लिए देता है, डक्ट होता है। So in this way male reproductive organ is works. Then female reproductive system. Female reproductive system से हमने क्या देखा, female reproductive system में सबसे पहले हमने क्या देखा, ovaries. Ovaries is the female gonad, जिसमें female gonad actually egg और ovum होता है। तो ovaries has the role to produce egg, है ना। ovaries ने क्या कर दिया, एक प्रोड्यूस कर दिया। देन उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये ऐसी फैलोपियन ट्यूब होती है। एंड ये जो एग बन गए, एग मैच्योर्ड होके अगर फैलोपियन ट्यूब में आ गए तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का पॉसिबिलिटी है। ओके, सो फैलोपियन ट्यूब के बाद हमने क्या देखा, वी हैव डिस्कस अबाउट द यूट्रस, जहाँ पे ये जो एम्ब्रियो है या फिर बच्चा रह सकता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज यूट्रस। फिर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग फॉर्मेशन अकर्स इन बोथ ओवरीज। अब हम क्या बात कर रहे हैं, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ही बात हो रही है। तो ये जो एग फॉर्मेशन दोनों ओवरीज में होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर की जो है ये क्या है, ओवरीज है, दिस इज ऑल्सो ओवरी। तो दोनों में एग और ओवम फॉर्मेशन का टास्क होता है, बट इट इज डन ऑल्टरनेटिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये आई जस्ट वॉन्ट टू रफ इट, जस्ट लाइक कि इफ इन वन ओवरी इट इज जनरेटेड बाई, एक ओवरी में जनवरी में हो गया तो दूसरी ओवरी में क्या हो जाएगा, दूसरी ओवरी में फरवरी में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो इन दिस वे जनवरी में एक ओवरी में एक प्रोड्यूस हो गया, फरवरी में दूसरी ओवरी में हो जाएगा। सो ऑल्टरनेट, and that is from alternate ovaries. The egg maturation takes few days, and once the egg is formed, it is released in fallopian tube, that is ovulation takes place. जैसे एग मैच्योर्ड हो जाएगा वैसे वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये यहाँ पे एग मैच्योर हो गया तो वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा एंड ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। क्लियर स्टूडेंट्स? Now, what is meant by ovulation? It is release of egg from ovary into fallopian tube. तो ovulation का simple concept है, ovary matured हो गई and it released to fallopian tube. That process is called as ovulation. Now, what is the fit of ovum? अब ovaries ने, एक ovary ने एक ovum और egg produce कर दिया, वो mature हो गया, it went to the fallopian tube. Now, what is its
फ्यूचर, अब इसका फ्यूचर क्या है, हाउ इट इज ट्रैवल, हाउ इट हैज इट्स जर्नी, अब क्या है इसका आगे क्या होने वाला है, द फेट ऑफ ओहम, उसका आगे क्या होने वाला है। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर टू गेट फर्टिलाइज्ड और मेंस्ट्रुएशन, टू पॉसिबिलिटी है, एक तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। आई वुड लाइक टू आस्क स्टूडेंट्स, दिस इज नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से ड्यू टू दिस लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, यू हैव टू टेक इट वेरी कैंडिडली, बहुत नेचुरली आपको इसको लेना है। यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहीं एलियन वाला कोई कंसेप्ट मैडम इज टीचिंग यू, नो, दिस इज अबाउट आवर बॉडी, है ना। एक्चुअली मेल एंड फीमेल में 22 क्रोमोसोम्स आर सेम, मेल एंड फीमेल बॉडीज में क्या होता है 22 क्रोमोसोम्स आर सेम, हम एक जैसे होते हैं, ओनली वन क्रोमोसोम इज डिफरेंट एंड दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो आई थिंक बस उतना ही डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में, एंड इफ यू विल टेक इट वेरी कैंडिडली, आप अगर उसको कैंडिडली लेते हो तो देर वुड बी नो एनी कॉम्प्लिकेशन, एंड जो बोलते हैं ना कि स्टूडेंट का कॉन्सेंट्रेशन, दे लूज देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉट्स ऑफ स्टफ इज देयर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स, इधर दे आर वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, इसको बहुत कैंडिडली ले लो एंड जस्ट थिंक, लर्न इट अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक वे, साइंटिफिक वे में उसको पढ़ो एंड क्या बोलते हैं उसको, कि उसको उतना ही रखो, जहाँ जितना नेसेसरी है उतना ही उसको याद रखो। ओके, सो फर्टिलाइजेशन, एक तो फर्टिलाइज हो सकता है या फिर मेंस्ट्रुएशन आ सकता है। 28 डेज इज द आइडियल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। 28 डेज में क्या हो जाता है, 28 डेज का साइकिल होता है, सबसे पहले एग फॉर्मेशन होगा, वो मैच्योर होगा, वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, अगर स्पर्म नहीं आते हैं तो फिर वो वैसे ही मूवमेंट उसका होके 28 डेज में फिर वो क्या हो जाएगा, आपको मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, उसे हम पीरियड्स बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये, एंड वो फिर निकल जाता है अपनी बॉडी में से, मीन्स फीमेल बॉडी में से, इट इज, एंड ओवम का स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Now fate of ovum to get fertilized, either it will be fertilized or menstruation. Okay, so first of all we will discuss about the first case, if it is fertilized. So sequence of events that take place, ये जो अगर फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले we will discuss about the gamete formation of egg and sperm in male and female body. Now ये जो है सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि ये जो फेट ऑफ ओहम का सबसे इसमें वही है, गैमीट फॉर्मेशन मीन्स स्पर्म एंड ओहम और एग, फॉर्मेशन ऑफ एग इज टेकिंग प्लेस इन फीमेल बॉडी, स्पर्म इन मेल, एंड उसके बाद ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मीन्स क्या, मैच्योर्ड एग्स आर एंटर इन अ फैलोपियन ट्यूब, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इंटू फैलोपियन ट्यूब, ओवरी में एग होते हैं, वो जब मैच्योर्ड हो जाएंगे वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। फिर देन कॉप्यूलेशन क्या है, कॉप्यूलेशन मीन्स मेटिंग ऑफ मेल विथ फीमेल, अगर मेल एंड फीमेल का कॉन्टैक्ट आता है, ओके, सो ये मेल एंड फीमेल का अगर कॉन्टैक्ट आता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट आता है, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉप्यूलेशन, तब ये कॉप्यूलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। ओव्यूलेशन के बाद अगर फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन हो गया है, मीन्स एक मैच्योर्ड हो गए, फैलोपियन ट्यूब में आ गए हैं, एंड आफ्टर दैट इफ देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल, then this copulation process can be happen. Dear students, if this copulation हो गया, अगर हो गया on that specific time period, then the next process is the fertilization. उसके बाद fertilization taking place, fusion of sperm means male gamete to and female gamete, that is egg, to form zygote. फिर क्या हो जाएगा, ये जो sperm and egg कैसे है, राउंड लेग स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एग है, एंड यहाँ से क्या होगा, स्पर्म आएगा, ये जो है स्पर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। जो आई सेड, मैंने क्या बोला कि ये जो हेड है,
एग सॉरी स्पर्म का जो हेड होता है टिप पे, उसके क्या होता है, वो क्या करता है, इट हैज द कैपेसिटी, इट हैज द कैलिबर टू ब्रेक द ओवम. सो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म जाइगोट, ये अगर हो गया, इफ दिस फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर वहां पे देर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. स्पर्म क्या है, छोटी सेल है अपनी बॉडी की, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, एग लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी. फिर उनका अगर फ्यूजन हो जाएगा, देर इज वो दोनों एक सेल उनका फर्टिलाइजेशन होके देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ वन न्यू सेल. दोनों का मेटिंग होने के बाद एक न्यू फॉर्मेशन, न्यू सेल बन जाएगा, दैट इज जाइगोट. नाउ इम्प्लांटेशन, ये हो गया. तो इम्प्लांटेशन क्या है, फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूट्रिनल वॉल. ये कहा जाएगा, तो यूटेरिन वॉल में ये चला जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा, फिक्सिंग ऑफ जाइगोट. जाइगोट तो बन गया बट वो फिक्स भी तो होना चाहिए, तो वो फिक्स हो जाएगा, दैट इज इम्प्लांटेशन. दिस इज नेक्स्ट स्टेप. देन प्लासेंटा, प्लासेंटा फॉर्मेशन. एक्चुअली अब जाइगोट तो बन गया है ना, स्पर्म ने क्या किया, स्पर्म हैज ब्रोकन द वॉल ऑफ एग और ओवम, फिर उसमें देर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. वो जाइगोट अपने प्लेस पे उसका इम्प्लांटेशन हो गया. नाउ इसके बाद देर इज नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज प्लासेंटा फॉर्मेशन. जाइगोट हो गया, जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन विल बी स्टार्ट. वहां पे क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. जाइगोट तो सिंगल सेल है, बट फिर उसका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा सिंगल सेल से ही हमारा बॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. फिर ये वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू, फिर टू, ये टू वाले हैं, ये फोर सेल, ये टू में चले जाएंगे, ये टू में चले जाएंगे, फोर हो गए. वो फोर अगेन फिर उनका क्या हो जाएगा, टू ऐसे करके वो 8 सेल्स हो जाएंगे. ये जो सेल डिवीजन हो रहा है, इट रिक्वायर एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए. दैट एनर्जी इज, वो कहाँ से मिलेगी, फिर ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन. टेम्पररी फॉर्म्ड टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. सो आई कैन शो यू, ये देखिए, ये यहाँ पे जो दिया है, तो ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, ये हमारा जो पेली के यहाँ पे है, यहाँ से ये अटैच्ड होता है, और मदर का जो न्यूट्रिशन है ये प्लेसेंटा के थ्रू दिस एम्ब्रियो को चला जाता है. लीवर के, एम्ब्रियो के लीवर को वो अटैच्ड होता है एंड वहाँ से वो चला जाता है. देन जेस्टेशन पीरियड. ये जेस्टेशन पीरियड क्या है, अब हमने क्या देखा, वेरी डिटेल वी हैव डिस्कस, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद, प्लासेंटा फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड आएगा. बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो, मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे जाइगोट बनने के बाद 8 वीक्स तक अप टू 2 मंथ्स हम उसे फीटस बोलते हैं, फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो बन जाता है. सो 9 मंथ्स का स्ट्रक्चर आई हैव गिवन यू ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे दिया है. जेस्टेशन पीरियड क्या है, द पीरियड ऑफ डेवलपिंग ऑफ जाइगोट इनटू फुल्ली ग्रोन ऑफस्प्रिंग. तो दैट इज जेस्टेशन पीरियड. आई जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज इट. देखो, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ में कैसे है, यू कैनॉट जस्ट बाइफरगेट इट, यू नो, वो जो बॉल लेग स्ट्रक्चर ही होता है. सेकेंड मंथ में वो थोड़ा थोड़ा हमें पता चलने की कोशिश होती है. फिर ये है थर्ड, सेकेंड मंथ में डेफिनेटली वो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. थर्ड मंथ में तो काफ़ी अच्छे से वी कैन आइडेंटिफाई इट. फोर्थ मंथ में, तो फोर्थ मंथ अगर कंप्लीट हो जाता है, तो फोर्थ मंथ कंप्लीट होने के बाद वी आर एबल टू डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड, वेदर द एम्ब्रियो इज वो क्या है, मेल है या फीमेल है ना, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इन दिस वे, सो दिस इज जेस्टेशन पीरियड. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है. नाउ ये है पार्चुरेशन. ये पार्चुरेशन जो है एक्सपेलिंग फुल्ली ग्रोन बेबी फ्रॉम मदर्स ओम. अब 9 मंथ्स का टाइम पीरियड हो जाएगा, उसके बाद दिस बेबी इज रेडी टू कम ऑन दिस प्लैनेट. प्लैनेट तो वैसे भी मम्मी के पेट में तो आ ही गया है, बट बाई
हिमसेल्फ और हर सेल्फ, है ना, अपना खुद का लाइफ स्टार्ट करना है, तो ये 9 मंथ के बाद दैट बॉडी इज एबल टू कम आउट. अब वो बाहर आके इट दैट बेबी कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. दैट इज पैचुरेशन, एक्सपेलिंग फुल्ली ग्रोन बेबी फ्रॉम मदर्स ओम, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाउ दिस बेबी इज ready to deliver. That is parturition period. That is parturition. And ideal time period is 9 month 9 days के बाद this baby is ready to deliver. Okay, this is ideal time period, but in some cases it is possible कि कभी क्या हो गया कि वाटर ले कम हो गया, फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, जैसे प्लासेंटा है वो कैसे गले में कभी कभी फंस जाता है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं. दैट टाइम इट इज़ पॉसिबल कि वो थोड़ा जल्दी भी डिलीवरी करने का डिसीजन डॉक्टर्स कैन टेक. इट्स अप टू डॉक्टर डिसाइड करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है. इट इज़ जस्ट जनरल नॉलेज. Now the next topic is sex determination. Okay students, we will discuss about the sex determination. This is also important aspect according to your knowledge, as well as some myths. Some myths are in our society, so I would like to just remove that myths from your life. First of all, sex determination, it is a process by which sex of a child is determined. So sex determination is the process in which हमें पता चलेगा कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है. दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. सो हाउ ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, या फिर कैसे होता है मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, दैट इज I just want to elaborate in front of you students. Actually, as I said, male या female human beings में 23 chromosomes are present. 23 chromosomes होते हैं. Male and female के 22 chromosomes are same. Clear? वो same है 22 chromosomes. Only one chromosome is different and that is sex chromosome. So male में XY chromosome होते हैं. Instead of that, female में XX chromosome होते हैं. क्लियर? 22 क्रोमोसोम तो हम लोगों की बॉडी में सेम ही है. ओनली वन क्रोमोसोम इज डिफरेंट, दैट इज इन मेल XY एंड इन फीमेल XX क्रोमोसोम. नाउ ये जो मेल के क्रोमोसोम्स है XY एंड फीमेल के XX क्रोमोसोम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, अब हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं. वॉट एवर द चाइल्ड वी आर एक्सपेक्टिंग, तो वो चाइल्ड का सेक्स कौन सा हो सकता है. सो इट्स अप टू, ये 50-50% चांसेस है. इधर इट वुड बी बेबी बॉय और इट वुड बी बेबी गर्ल. फिर कैसे होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, बेबी बॉय क्यों होता है, बेबी गर्ल क्यों होती है. वी जस्ट वांट टू सीक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, उसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है. तो मेल में जो XY क्रोमोसोम होते हैं, इफ जो मेल के X क्रोमोसोम है वो अगर इसमें चले गए, फीमेल के तो क्या रहेंगे, उनका तो XX ही रहेगा, है ना. अगर मेल का X क्रोमोसोम चला गया, फीमेल का एक क्रोमोसोम आएगा, फीमेल का तो कंफर्म है X ही क्रोमोसोम आने वाला है. मेल का जो आ रहा है वो स्पर्म, अगर वो X क्रोमोसोम का आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, X, मेल का X, फीमेल का X, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड. मेल का अगर Y क्रोमोसोम आ गया, फीमेल का तो X फिक्स ही है. क्लियर? फीमेल का X फिक्स ही है, तो फीमेल का X ही रहने वाला है. मेल का अगर Y आ गया तो क्रोमोसोम बन जाएगा XY एंड देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बेबी बॉय. तो मिथ ऐसा है अपनी सोसाइटी में कि पीपल बिलीव कि ऐसे इट्स, अभी तो आई थॉट कि इतना नहीं है, बट पहले ऐसे बहुत ब्लेम करते थे कि जिनको बेबी गर्ल्स होती थी तो ऐसा बोलते थे कि इसकी मम्मी को सिर्फ लड़की आई हुई है करके. बेसिकली मैं जो हूँ, आई एम फ्रॉम द, मैं जो बोलते हैं फीमेल डोमिनेटिंग फैमिली से हूँ. मुझे सिस्टर्स है, आई हैव ऑल्सो माई 2 daughters. सो बट इट्स नॉट अप टू गर्ल पे नहीं डिपेंड होता है, बिकॉज गर्ल्स आर हैविंग द XX क्रोमोसोम. तो वो कैसे डिसाइड करेगी, एक्चुअली मेल के भी हाथ में कुछ नहीं होता है. बट इफ़ वी विल थिंक अबाउट, अगर हम साइंटिफिकली भी अगर हम सोचते हैं तो इट डिपेंड ऑन मेल का कौन सा क्रोमोसोम आ गया है वो बच्चे में, वो डिसाइड करता है कि आने वाला बच्चा एक्सपेक्टिंग चाइल्ड वुड बी बेबी बॉय और बेबी गर्ल. I hope you understood. There is 50-50% chance of baby boy or baby girl, and everyone should very happily
welcome the expected baby, because the healthy baby would be the should be the priority of everyone. हेल्दी बेबी होना चाहिए, यही सबका प्रायोरिटी होना चाहिए. बिकॉज बेबी बॉय और बेबी गर्ल, इट डजेंट मैटर. इफ़ वी वॉन्ट टू रन, अगर हमें हमारा सोसाइटी चलाना है तो डेफिनेटली not only male or not only female can run this society, can run this life. हमारा जो existence है, if we are talking about the human being, अगर हम human being की भी बात करते हैं तो भी it is not possible. There should be equally होने चाहिए, मेल भी होने चाहिए, फीमेल भी होने चाहिए. So we have to give respect male child as well as female child. Okay. Sex of child is determined by father, as father produce different types of gametes. It depends on father, but it is not in their hand. Now the next topic we are going to discuss about types of animals based on how they produced offsprings. So two types of जैसे क्या बोलते हैं उसका reproduction का process होता है. On the basis of that, two types of reproduction, two types of animals based on how they reproduce or produce offspring. तो वो क्या है? विविपैरिस एंड ओविपैरिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the viviparous. Viviparous means they are those organisms give birth to young ones. तो ह्यूमन बींग्स हैं. अभी तक हमने वही डिस्कस किया हमने कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, एंड फीमेल की बॉडी में वो जो ओम्ब है या फिर एम्ब्रियो है, वो बच्चा है, 9 मंथ रहता है. उसके बाद दैट बेबी और दैट एक्सपेक्टेड बेबी इज रेडी टू डिलीवर. फिर वो क्या हो गया? सो दिस एग्जाम्पल इज विविपैरिस. वो फीमेल ने बर्थ दिया बच्चे को, एक नहीं बॉडी में से दिया है, बॉडी में से बच्चा आ गया, दैट इज विविपैरिस. एग्जाम्पल मैमल्स, जनरली मैमल्स जैसे काऊ है, काऊ का भी आप लोगों ने सुना होगा. समवेयर यू सॉ ऑल्सो हॉर्सेस होते हैं, डॉग्स होते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स भी होते हैं. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपैरिस. नाउ ओविपैरिस. ये ओविपैरिस क्या है? दैट ले एग्स विच हैच इनटू ऑफस्प्रिंग. जो एनिमल्स एग्स देते हैं, ले एग्स मीन्स अंडे देना, एग्स देना, एंड कुछ दिनों के बाद वो जो एग है, दैट एग विल हैच, and that egg will be hatched, and after that we will have that offspring. हमें उसमें से वो छोटा बच्चा मिलेगा, ऑफस्प्रिंग मिलेगा, यंग वन मिलेगा. तो उनके एग्जाम्पल्स क्या है? ओविपैरिस के एग्जाम्पल्स बर्ड्स है, स्नेक्स है, फ्रॉग्स है, हेन्स है. सो दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपैरिस. विविपैरिस में क्या है? मैमल्स है, ऑल मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विविपैरिस. ह्यूमन बींग है, काऊ है, हॉर्स है, डॉग है. एंड ओविपैरिस के एग्जाम्पल्स है बर्ड्स है, स्नेक है, हेन है, फ्रॉग्स है. दिज आर एग्जाम्पल ऑफ ओविपैरिस. वेरी सिंपल कंसेप्ट, easy to remember and important according to exam. Now we will discuss about the next topic, that is metamorphosis. ये metamorphosis क्या है? It is series of changes that larva undergoes to form an adult. ये metamorphosis क्या है? जैसे हमने human being का देखा कि वो जो 9 मंथ एंड 9 डेज का साइकिल होता है, सो वो तो एक्चुअली आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया. ओके, सो उसके पहले भी होता है, दैट वन वी हैव डिस्कस्ड. एग फॉर्मेशन से लेके फिर वो एग फॉर्मेशन हो गया, वो मैच्योर्ड हो गया, वो फेलोपियन ट्यूब में आ गया, फिर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया एंड ऑल दैट स्टफ. सो वैसे मेटामॉर्फोसिस है, इट इज सीरीज ऑफ चेंजेस दैट लार्वे अंडरगोज टू फॉर्म एन एडल्ट. मेटामॉर्फोसिस क्या है? लार्वे से एडल्ट का जो जर्नी है, दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. Now we will discuss about the life cycle of silkworm. Silkworm का life cycle I thought we have discussed. हमने इसी ईयर में we have discussed. हमने synthetic fiber के लेसन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो ये जो लीफ दिया है वहाँ पे एग्स फॉर्मेशन हो गया है, ओविपैरिस है ना ये. सो लेइंग ऑफ एग्स, उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले फीमेल ने एग्स दे दिए, फिर वो जो एग्स थे मेल एंड फीमेल है. सबसे पहले ये ककून है, ककून विथ डेवलपिंग मॉथ. फिर ये एग्स हो गया, फिर सिल्कवर्म हो गया.
सो ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म है।